Very good morning, dear students. Now, today we will start a new topic of lesson number 2, that is Russian Revolution. In the last class, we have studied about the socialism and how the people started supporting the ideas of socialism, that is, the wealth should be controlled by the society, not by the individual people. Okay, this we have studied, and many parties were also formed, like the Labour Party in Britain, okay, in Germany, Social Democratic Party, and in France, Socialist Party, and these parties were strongly supporting the socialist ideas. Now we will start Russian Revolution, and firstly, you should be clear with what is Russian Revolution. Now, socialist people took over the government in Russia. How? By doing October Revolution in 1917 and the fall of monarchy in February 1917, and the events which took place in October are known as Russian Revolution. Okay, once again I am repeating. देखो रशियन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जब सोशलिस्ट जो पर्सन्स थे उन्होंने गवर्नमेंट अपने अंडर में कर लिया। उन्होंने कब किया? अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में, उसके बाद। और फ्रांस में जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है? जब किंग का रूल होता है। तो कैसे वो फॉल हुई, कैसे या कौन कौन से इवेंट्स हुए अक्टूबर में 1917 में? दिस कंप्लीट circle of events is known as Russian Revolution. Okay, so how this situation came, how October Revolution took place, and how the fall of monarchy took place, what were the steps were taken out, and what was the condition of people, all these things we will see in detail. So now we will start from the 1914. ठीक है, हम 1914 से स्टार्ट कर रहे हैं। अक्टूबर रिवॉल्यूशन या फिर रशियन रिवॉल्यूशन हुआ कब था? 1917 में, बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1914। ये आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। अब जो भी हम पढ़ेंगे वो हम 1914 से पढ़ रहे हैं, मतलब रिवॉल्यूशन से पहले की बात। रिवॉल्यूशन के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। सो as in the France, Louis was there. Okay, now in 1914 in Russia, Tsar Nicholas II was a powerful ruler, and he was ruling Russia and its empire. अब अगर बात करें कि उस टाइम जो एरिया सार निकोलस रूल कर रहे थे वो किस किस को इंक्लूड करता था, तो अगर आज की बात करें तो द टेरिटरी ऑफ अराउंड मॉस्को and at present Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. Okay, these all places were under the empire of Tsar Nicholas, and its empire was also stretched towards the Georgia, Armenia and Azerbaijan. Okay, at these places also Russian Empire was ruling. In map also you can see this is Russian Empire, and only Russian Empire was there. Okay, so at currently these all places were in 1914 ruled by Tsar Nicholas. You should be very clear with this. Now if we talk about the people living in Russia, or the majority of religion of Russia was Russian Orthodox Christianity. First of all, you have to understand what are Orthodox. Orthodox are the people who are very conservative, मतलब जो पुरानी चीज़ों को, पुराने सिस्टम को, पुराने रूल्स रेगुलेशंस को, पुराने समाज को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, जो थोड़े पुराने विचारों के हैं और वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपनी आइडियोलॉजीज़ को, आइडियाज़ को चेंज करना नहीं चाहते। सो ऐसे
क्रिश्चियंस में भी तो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे रशिया के, दे वर इन मेजोरिटी देयर, एंड these people have grown out of the Greek Orthodox Church but empire. लेकिन ये लोग जो आए थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से आए थे, और इनके अलावा कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट वर ऑल्सो देयर. Catholics or Protestants are type of Christians only. Okay, these were also included. Means the majority religion of Russia was Russian Orthodox Christianity, plus other religions which were there were Catholic, Protestants, Muslims and Buddhist. So now we will study about the economy and society in the beginning of 20th century in Russia. So the majority of Russian peoples were agriculturalist, means 85% of the Russian empire's populations were engaged in agriculture. अगर हम बात करें यूरोपियन अदर कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर ऐसा नहीं था. लाइक इन फ्रांस एंड जर्मनी दिस परसेंटेज वॉज 40 to 50%, but the Russian empires in Russian Empire 85% of the people are engaged in agriculture, and due to this the cultivators produced for the market as well as for the own needs. ठीक है, जो कल्टीवेटर्स थे वो मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी प्रोड्यूस करते थे. ऑल दिस इज रिटन हियर. एंड Russia was the major exporter of the grains, and as large production was taking place, 85% of the people are living or earning their living by agriculture. So Russia was a major exporter. Russia used to export grains to other countries. Now this was about the agriculture. Now we will see about industries. Now only few industries were there. Okay, like the major industrial areas were St. Petersburg and Moscow. कुछ ही इंडस्ट्रीज थी और इन्हीं जगह पर थी. Then craftsmen undertook much of the production and large factories existed alongside craft factories. जो छोटे छोटे कारखाने थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थे और उनके आसपास में क्या थी, फैक्ट्रीज थी. Many factories were set up in 1890s. ज़्यादातर फैक्ट्रीज तो 1890s में सेटअप हुई. कब? when railway network in Russia extended and foreign investment in industry increased. अब रेलवे नेटवर्क तो आप समझ गए, ठीक है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है when other countries businessmen used to set up business here. वो क्या कर रहे हैं, हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट किसके फॉर्म में, यहाँ पे बिल्डिंग सेटअप करके, यहाँ पे बिजनेस वगैरह सेटअप करके, इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पर जैसे एमएनसीज़ की अगर बात करूँ तो एमएनसीज़ क्या होती है, उनका हेडक्वार्टर अपने कंट्री में होता है, होम कंट्री में, एंड दे यूज टू गो टू अनदर कंट्रीज एंड start business there. So what they are doing, they are making foreign investment. So the many industries started setting up in 1890s in Russia because of the two things, because of the foreign investment and because of the railways network. And coal production, if we talk, doubled, and iron and steel production क्वाड्रपल्ड मीन 1/4, ठीक है, एक क्वार्टर जिसको बोलते हैं. और 1900 तक इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर. बराबर बराबर हो गए, क्योंकि पहले तो क्या थे, क्राफ्टमैन ज़्यादा थे, अब फैक्ट्री आ गई हैं, फैक्ट्री वर्कर्स आ गए हैं, तो उनका नंबर क्या हो गया, इक्वल हो गया. सो we have seen about industry in the context of workers, and then earlier we have seen about agriculture.
Now, in the third paragraph, we will see about the industrialist again. So many industries were प्राइवेट ओन्ड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. अब यहाँ पर देखो, अभी सोशलिज्म जैसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, हम पहले की बातें कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैनी जो इंडस्ट्रीज थी वो कैसे ओन थी, बाय प्राइवेट सॉरी इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू. और गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज इंडस्ट्रीज ओनली. जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ उनको चेक करती थी जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी, टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. और वो भी किस लिए, कि सबको कम से कम मतलब नॉर्मल वेजेस तो मिल रहे हैं ना सबको, ये चेक करने के लिए. और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क ये चेक करने के लिए गवर्नमेंट सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज़ को सुपरवाइज करती थी. बट जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स होते थे कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन. फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो होते थे वो कभी भी ऐसा नहीं होने देते थे कि रूल्स मतलब को ब्रोक करने से रोक नहीं पाते थे. क्योंकि क्या होता था क्राफ्ट यूनिट्स में, छोटे छोटे कारखाने, स्मॉल वर्कशॉप्स में द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स. 15 आवर्स तक उनको काम करना पड़ता था स्मॉल वर्कशॉप में, एंड compared with the 10 and 12 in factories. So approx 10 to 12 hours the workers were working in factories, and 15 hours approximately they are working in small workshop. And जो accommodation था varied from rooms to dormitories. और accommodation उनको कुछ फिक्स नहीं था, उनको ऐसे ही मतलब सबको इकट्ठा ऐसे एक जगह, एक हॉल टाइप में उनको इकट्ठा रहना पड़ता था. ठीक है, तो ये उनका अकोमोडेशन था, वहीं सोना होता था, उनको शेयर करना पड़ता था, मतलब ऐसी सिचुएशन थी. तो अगर हम बात करें, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी. तो इसमें आप एग्रीकल्चर के बारे में बताओगे, दैट एग्रीकल्चर वाज गुड, एंड देन यू विल टेल अबाउट द इंडस्ट्रीज़ कि इंडस्ट्रीज़ और कोल वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ गया, इंडस्ट्रीज़ आई. ठीक है, एंड दिस मच यू विल टेल. बट व्हेन इट इज़ आस्क्ड बाय द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, you will tell they have to work for 15 hours in craft shops or workshops and 10 to 12 hours in factories, and accommodation facilities were also not good, and workers were also divided in various social groups. Okay, some workers were having strong links with the villages from they came. ठीक है, तो वर्कर्स अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थे वहाँ पर, और कुछ वर्कर्स के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे कहाँ से, जिन विलेजेस से वो आए थे, और कुछ जो थे वो सिटीज़ में ही सेटल हो गए परमानेंटली बिकॉज दे आर वर्किंग देयर. एंड सम वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल. कुछ लोग काम की बेहतरी के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे, परफेक्शन के अकॉर्डिंग. जैसे कि अगर बात करें कि सेंट पीटर्सबर्ग के जो मेटल वर्कर्स थे, दे कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग द अदर. मतलब कि वो सबसे अपने आप को ऊपर मानते थे, सबसे अपने आप को बेस्ट मानते थे बाकी वर्कर्स से. ठीक है, एंड देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल. और इन मेटल वर्कर्स का जो काम था उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और परफेक्शन की, स्किल की ज़रूरत होती थी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट विमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दिस वर्क, women made 31% of the factory labor force by 1914. अगर 1914 की हम बात करें तो 31% जो लेबरर्स होती थी वो कौन होती थी फैक्ट्री में, विमेन होती थी. बट डिस्क्रिमिनेशन वॉज देयर बिकॉज विमेन्स वर पेड लेस देन द मैन. और कितना लेस, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन वेजेस. या तो हाफ मिलता था और या फिर 3/4 जो मेंस के वेजेस हैं उतना मिलता था. एंड डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर टू. इसके अलावा और कैसे डिवाइडेड थे जो वर्कर्स थे, उनकी कुछ की ड्रेसेस अलग होती थी. ठीक है, इस तरीके से भी डिवीजन था. एंड सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प members in times of unemployment or financial hardships, but such associations were few. इसके अलावा एक अच्छी चीज़ जो थी उनमें, उन वर्कर्स में, हुई थी कि
कुछ वर्कर्स क्या करते थे, अपने छोटे छोटे सहयोग बनाते थे, ग्रुप्स बनाते थे, एसोसिएशंस बनाते थे। और किस लिए? ताकि उनका कोई ग्रुप का मेंबर, एसोसिएशन का मेंबर जब अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है, जब उसके पास काम नहीं है, उसकी जॉब चली गई है, तो उस सिचुएशन में उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, उसको हेल्प कर सके। दिस वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग एसोसिएशंस बाय द वर्कर्स। अब आगे क्या होता है, देखो हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और वर्कर्स की कंडीशन के बारे में, वर्कर्स के डिवीज़न के बारे में। तो वर्कर्स के डिवीज़न के बारे में अगर सबसे पहले हम देखें तो कुछ ऐसे थे जिनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था विलेजेस से, मीन्स दे आर कनेक्टेड विद द विलेज। नेक्स्ट वन, सम वर लिविंग परमानेंटली इन सिटीज़। अगर स्किल के बेसिस पे डिवाइड करें, ये तो सोशल ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड हो गया। अगर स्किल के बेसिस पे डिवाइड करें तो मेटल वर्कर्स सबसे टॉप में समझते थे अपने आप को, बिकॉज देयर जॉब रिक्वायर्ड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। अगर वीमेंस की बात करें, वो पार्टिसिपेट कर रही थी, बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रही थी, किसमें? फैक्ट्री लेबर में। बट वेजेस उनको कम मिलते थे, या तो हाफ या फिर 3/4 ऑफ द मैन वेजेस। डिवीजन ड्रेस वगैरह में भी देखने को मिलता था, अलग अलग काम के अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग ड्रेस होती थी। और वर्कर्स क्या करते थे? एसोसिएशंस फॉर्म करते थे इन ऑर्डर टू हेल्प द मेंबर्स ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब इतना सब डिवीजन था, हमने देखा ना, सोशल ग्रुप के बेसिस पे, स्किल के बेसिस पे, ये सब डिवीजन था ड्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट देन ऑल्सो वर्कर्स unite to strike workshop when they disagree with employers about dismissal और work condition। इतना वेरिएशन उनमें था, डिवीजन था, लेकिन फिर भी जब भी उनको कोई स्ट्राइक करनी होती थी, काम रोकना होता था फैक्ट्री में, या फिर जो एम्प्लॉयर है, जो उनका हेड है, उनके उनके व्यू पॉइंट से वो अगेंस्ट होते थे, या वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग डिसएग्री होते थे, या अगर कोई एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है उसके चक्कर में जब कोई स्ट्राइक वगैरह होती थी, तो ये सब यूनाइट हो जाते थे इतने डिफरेंसेस के बाद भी, डिविजन्स के बाद भी। और स्ट्राइक जो होती थी काफ़ी बार होती रहती थी, कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन थी और मेटल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल था, और कॉमनली मेटल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी स्ट्राइक्स होती रहती थी। अब अगर कंट्री साइड की बात करें, कंट्री साइड मीन्स रूरल एरियाज़, पीसेंट्स जो थे वो ज़्यादातर पार्ट लैंड का कल्टीवेट करते थे, और जो नोबिलिटी थी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड द लार्ज प्रॉपर्टी। जैसे हमने फ्रांस में पढ़ा था ना, 3 estates were there, the common people or peasants, then nobility and the clergy people। तो यहाँ भी वैसे ही था, कंट्री साइड में, रूरल एरियाज में पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, एंड द नोबिलिटी जो था उसमें कौन थे? द क्राउन मीन्स द इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ किंग, एंड द चर्च ओनर, ऑर्थोडॉक्स चर्च ओनर। ऑर्थोडॉक्स चर्च ओनर क्यों बोला है, ओन्ड क्यों बोला है? क्योंकि वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ही थे, तो चर्च मेंबर्स भी ऑर्थोडॉक्स होंगे। दे ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़, मतलब ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ थी वो किसके पास थी? नोबिलिटी और पीजेंट्स के पास। एंड लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, और वर्कर्स की तरह जो पीजेंट्स थे वो भी डिवाइडेड थे। सम पीजेंट्स वर डीपली रिलीजियस, कुछ बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, धर्म को मानते थे बहुत ज़्यादा, बट एक्सेप्ट इन ए फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। लेकिन ज़्यादातर ऐसे थे जिनको मतलब नोबिलिटी के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं था, मीन्स दे यूज टू हेट noble people, and noble got their power and position through their services to the Tsar। और नोबल्स के पास पावर कैसे आती थी? क्योंकि वो क्या करते थे, वो किंग के या सार निकोलस की सारे कई तरह के काम करते थे, कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, वो उनके खास लोग थे, ठीक है। नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। लोकल पॉपुलैरिटी का मतलब यह है कि जो नोबल्स की इम्पोर्टेंस थी, नोबल्स के पास पावर थी पोजीशन की, वो सिर्फ इसलिए थी कि वो सार निकोलस के लोग थे, इसलिए बस। लोकल लोगों में उनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, लोकल पीपल वर जस्ट हेटिंग देम। एंड दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन प्रेजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फोर्ट फॉर देम।
और ऐसा बिल्कुल नहीं था यहाँ पर कि पीजेंट्स रेस्पेक्ट करते थे फ्रांस में जो नोबल्स को, ठीक है, उनके लिए लड़े, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। रशिया में क्या था, पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। अब यहाँ पर रशिया में जो पीजेंट्स थे वो ये चाहते थे कि जो नोबल्स के पास लैंड है वो क्या होनी चाहिए, पीजेंट्स के पास आनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता था कि जो पीजेंट्स थे रशिया में, दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट, जो रेंट था, किराया था लैंड पर, वो नहीं दिया करते थे, रेवेन्यू वगैरह। एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका मर्डर भी कर देते थे ये पीजेंट्स। मीन्स इफ़ वी कंपेयर द पीजेंट्स ऑफ फ्रांस एंड पीजेंट्स ऑफ रशिया, रशियन पीजेंट्स आर मोर एग्रेसिव एज कंपेयर टू द फ्रेंच peasants. And in 1902, this violence occurred on a large scale in South Russia. And in 1905, many incidents took place all over Russia. Which kinds of incidents? The peasants were ruling against the, peasants were going against the, we can say, nobles in Russia for the land. Now, this is important. Question also comes from this. The Russian peasants were different from other European peasants in another way. एक और चीज़ में रशियन peasants अलग थे। ये क्या करते थे रशियन peasants? They pooled their land together periodically and commune divided according to the needs of individual families. ये पूरा का पूरा क्या करते थे, अपनी लैंड को साथ में मिला लेते थे, प्रोडक्शन करते थे, एंड वॉट एवर इज़ अर्नड, जो भी ग्रेन्स वगैरह हम उन्होंने प्रोड्यूस किए कंबाइंड करके लैंड को, वो फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंग सभी फैमिलीज़ में क्या होते थे, डिवाइड कर लेते थे. दिस इज़ नोन एज कम्यूने और मी. थैंक यू.